Hello everyone and welcome back to Knowledge PSC. I am your English faculty Rebecca Dongal and I will be discussing with you our central UAQs again. Okay, so this is the 16th session that we are doing, and before this we have already done 15, and I hope you have watched all those videos. And if you haven't yet, you can go through the previous year question papers. Okay, that we are discussing, and you will find everything in the Knowledge PSC website. Chalo, without much delay, let us discuss the first question. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. The underlined segment says select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Raghav, who studies tourism at present, is planning to go abroad after his graduation. Raghav studies tourism at present is planning to go abroad after his graduation. तो will study लिखा है, study लिखा है, studied लिखा है और is studying. ठीक है, तो यहाँ पे like the options we have to choose one of these to replace this underlined segment. So okay, please go. I'll give you a few seconds to think about it so that we can discuss this one. Okay. So here, if you see Raghav, who is presently, letting it present when it means now, like currently, right? Currently he is studying. So for currently we will use studying, is studying, not studies tourism. We will use present continuous tense because that action is going on right now. So is studying, present continuous. Present continuous. What about this one? Studied. Is a simple past. Okay. Takes a second. It's a simple past. This is base form. This is future tense. Future and will study is already given. Will be studying, will like that is not given. So this is like simple. They are indefinite. Future indefinite. Future indefinite tense. So our answer is present continuous tense. That means he is currently studying here right now, right? Study is going on. He is planning to go. After he is done studying here, he will go to abroad for graduation. That's what we're talking about. Next one. Select the word that has the same meaning, synonyms as the underlined word in the given sentence. The disposal of hazardous waste in hospitals and factories is a serious problem and needs to be taken care of urgently. Disposal of hazardous waste in hospitals and factories is a serious problem and need to be taken care of urgently. तो यह डिस्पोजल जो है जो हम फेंकते हैं हॉस्पिटल से, ठीक है, वेस्ट जो हम फेंकते हैं वो क्या है, डेंजरस है इन हॉस्पिटल्स. ओके, डेंजरस है इन हॉस्पिटल्स एंड फैक्ट्रीज, सीरियस प्रॉब्लम. जो हम वेस्ट फेंकते हैं हॉस्पिटल और फैक्ट्रीज में वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ अर्जेंटली. और इसको हमें क्विकली टेक केयर करना चाहिए, इसको चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए क्विकली. ठीक है, हैजर्डस का क्या मीनिंग मैंने बोला, डेंजरस. ठीक है, डेंजरस समथिंग दैट इज डेंजरस, वो हार्मफुल है. ठीक है, ओके. डेंजरस चीजें क्या होता है, डेंजरस चीजें रिस्की होता है, राइट. डेंजरस चीजें क्या हो रहा है, रिस्की, अनसेफ होता है. बिलिजरेंट का क्या मीनिंग होता है, बिलिजरेंट, कोई इंसान बिलिजरेंट होता है तो वो हॉस्टाइल होता है, हॉस्टाइल होता है. ठीक है, हॉस्टाइल होता है, एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव होता है, रिस्की. नेक्स्ट वन हेजी. हेजी चीजें क्या हो जाती है, हेजी आप मॉर्निंग मॉर्निंग जैसे कि विंटर में जाते हो ना बाहर,
ठीक है। विंटर में आप बाहर जाते हो तो क्या होता है, फोगी होता है, मिस्टी होता है, फोगी होता है, राइट, फोगी होता है, फॉर विजिबल होता है, फोगी, मिस्टी होता है, फोगी होता है। और चीजें क्या होता है, हेजी का मतलब अनक्लियर, ठीक है। अब सुबह सुबह निकलोगे विंटर में तो पूरा मिस्टी होता है सराउंडिंग, लाइक पूरा फोगी फोगी लिखेगा आपको। और बाकी चीजें भी अनक्लियर होता है। जो चीज अनक्लियर होता है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, आई होप अभी आपको याद होगा, ऑब्सक्योर। जो चीज अनक्लियर है उसके लिए हम ऑब्सक्योर यूज करते हैं, ऑब्सक्योर, ठीक है। और ये बेनाइन जो है ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, ऑब्सक्योर भी कॉमन है, OBSCURE, ऑब्सक्योर। बेनाइन का मतलब समथिंग दैट इज हार्मलेस, ओके। बेनाइन का मतलब समथिंग दैट इज हार्मलेस, हार्मलेस है बेनाइन। बेनाइन का मतलब हार्मलेस, इधर लिख देते इसका, हार्मलेस, हार्मलेस, ठीक है। अगर जो कोई चीज हार्मलेस है तो क्या होता है, वो जेंटल होता है, काइंड होता है, मीक भी होता है, मीक भी होता है। और एक बहुत ही कॉमन वर्ड, हम इतना दिन मैंने जितना करवाया है उसमें बहुत ही एक कॉमन वर्ड बार बार आ रहा है, बेनेवलेंट। ये वर्ड यार, ऑब्सक्योर भी और बेनेवलेंट। बेनेवलेंट इंसान क्या होता है, वो हार्मलेस होता है, काइंड होता है, जेंटल होता है, ओके, जेंटल, जेंटल, ठीक है। चलो, हमारा आंसर क्या बना इसका, डेंजरस, मैंने पहले ही बोला था डेंजरस है, इससे आंसर ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग। Dangerous, risky, unsafe, belligerent, hostile, aggressive, hazy, misty, foggy, unclear, obscure. benign का क्या बोला मैंने, हार्मलेस है, जो चीज हार्मलेस है, जेंटल है, काइंड है, मीक है। जेंटल तो दो बार लिखे। चलो, और बेनेवलेंट, बेनेवलेंट मतलब बेनाइन, काम, जेंटल, ठीक है। Let's see that. Next one. Select the present perfect tense. Select the present perfect tense of the verb in the given brackets. The present perfect tense. हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी हैव टू चूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे हैज स्टडीड, हैव स्टडीड और हैज बीन स्टडीइंग, हैड स्टडीड, which one is the correct answer? हैज स्टडीड is what? ये तो प्रेजेंट, हैज है प्रेजेंट है, स्टडीड V3 है, ये क्या हो गया, हैव हैज हैड के साथ में हमें एक V3 लगता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा, ये V3 है ना, सॉरी V2 नहीं, V3 है, V3 है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हैज स्टडी क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव स्टडीड क्या होता है, हैव स्टडीड तो नहीं होगा, हैव स्टडी नहीं होता है, अभी मैंने बोला हैव, अभी अभी मैंने बोला हैव, अरे हैव, हैज, हैड, तीनों के बाद पीछे लगता है, हैड डन, हैड स्टडीड, हैज डन, हैज या हैव डन, ठीक है, ये बनेगा। तो हैज बीन स्टडिंग कौन सा है, आईएनजी आया है तो क्या है, हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैड स्टडीड कौन सा होगा, ये तो पास्ट परफेक्ट होगा ना, हैड स्टडीड, हैड ये पास है और ये वीची लगा है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ में आंसर हमारा कौन सा बना, आंसर बना हमारा ये वाला, ठीक है।
प्रेजेंट परफेक्ट में हैज स्टडीड, हैज प्लस बीच ही होगा। परफेक्ट टेंस में देखो, कोई भी परफेक्ट टेंस आपको लेके आओ, सारे परफेक्ट टेंस में बीच ही लगता है। जैसे कि इसमें बीच ही लग गया, इसमें बीच ही लग गया, लेकिन ये हैड था, ठीक है था, तो ये बीन लगा हुआ है जी, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contain a grammatical error. यहाँ पे grammatical error कहाँ पे आए हैं आपको ये चेक करना है। Teacher checked whether each of them have a blanket as it was a cold night. Each of them. The teacher checked whether each of them have a blanket as it was a cold night. तो यहाँ पे आंसर बताएं। ठीक है, इसका बताइए नंबर 4। टीचर चेक्ड, ये तो सही है, फर्स्ट वाला ये रहा, टीचर चेक्ड, टीचर ने चेक किया, ये तो सही है। और फिर नेक्स्ट वाला वेदर ईच ऑफ देम, वेदर ईच ऑफ देम, ये भी सही है। वेदर ईच ऑफ देम कहाँ है, वेदर ईच ऑफ देम ये था, वेदर ईच ऑफ देम सेकेंड वन, ये भी सही है। हैव अ ब्लैंकेट, यहाँ में इच जो है, पहले हमने प्रोनाउन चैप्टर में दिया, जब इच आता है तो इच को हम क्या करते हैं, इच को हम सिंगुलर नाउन की तरह लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये वर्ब क्यों प्लूरल हो गए, ये तो प्लूरल है, ठीक है, दैट मीन्स ये गलत है। सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब होना चाहिए ना, है कि नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब होगा, हमने पहले ही देखा था। सिंगुलर सब्जेक्ट एक्सेप्ट इन सम केसेस, जो रूल बनता है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसके अलावा बाकी तो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का बनेगा कौन, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब का, प्लूरल सब्जेक्ट का बनेगा वर्ब। इसी तरीके से ऐसे ही बनेगा आपका, जितना सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, have is incorrect because this is our subject is singular, right? Have is incorrect because our subject is singular. So which one is incorrect? This one. This is our answer. What do we have to do? We have to select the segment that contain error. जो पार्ट गलत है उसी को हमें चूज करना था, तो हो गया हमारा नंबर 1, ठीक है। आप ऐसे क्विकली रीड कर सकते हो, लेकिन सेंटेंस ये भी अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3, अब 3 टिक मत कर लेना बिना पढ़े, ठीक है, 3 टिक मत कर लेना बिना पढ़े, तो उसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, select the most appropriate synonym of scanty in the sentence given below. Scanty का मीनिंग क्या है, select the most appropriate synonym of scanty in the sentence given below. India has varied reasons which have reasons. India has varied reasons which have excess, moderate and deficient rainfall all throughout the year. तो यहाँ पे बता रहा है इंडिया में बहुत सारी जगह है, वहां पे कहीं पे एक्सेस माने ज्यादा मात्रा में, एक्सेस माने मॉडर्न नीडेड, मॉडरेट माने ठीक ठाक, डिफिशिएंट माने कम, ठीक है। रेनफॉल ऑल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम कहीं पे ठीक ठाक, वैसे हमारा बारिश हो रहा है। तो यहाँ में स्कैंटी का सिनोनिम्स चाहिए। स्कैंटी का मतलब क्या होगा, तो स्कैंटी का इस सेंटेंस में यहाँ पे 1 2 3 4 क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग हमें निकालना है। स्कैंटी का मीनिंग, स्कैंटी
यहाँ पे स्कैंटी का क्या मतलब होगा? स्कैंटी का मतलब जो कम है, स्कैंटी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिशन हो जाएगा, डिफिशन। स्कैंटी रेनफॉल, तो या तो ज्यादा मात्रा में बोला था, तो ये मॉडरेट है, और ये कम है, लेस है, ठीक है। तो डिफिशन हो गई, तो ये इसका हमारा आंसर बन रहा है, ये वाला। लेकिन बाकी का वोकेबुलरी हम देख भी लेते हैं। एक्सेस का क्या बोला था मैंने? एक्सेस का मतलब जो ज्यादा है, ठीक है। सरप्लस हम बोल सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, जो एक्स्ट्रा होता है, सरप्लस प्रोडक्शन हम बोलते हैं ना, सरप्लस, ठीक है। रिडंडेंट, इंग्लिश में रिडंडेंट बोलते हैं, मतलब जो जो चीजें हम वर्ड्स, सेम सेम वर्ड हम साथ में यूज करते हैं, सेम मीनिंग वाले वर्ड साथ में यूज करते हैं, तो उसको रिडंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, और रिडंडेंट नहीं, सुपरफ्लूस, सुपरफ्लूस भी हम बोलते हैं। सुपरफ्लूस का एरर कैसे आता है? जैसे कि हैडन बैरली, मतलब इसका इसका मतलब भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव यूज किया है, तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव हम दोनों साथ में यूज कर ले, तो इसको काटना पड़ेगा। तो एक ही नेगेटिव हम यूज कर सकते हैं, वही वैसे टाइप का वो एरर को बोलते हैं सुपरफ्लूस या फिर रिडंडेंट, रिडंडेंट, ठीक है। ये एग्जांपल था। मॉडरेट का मीनिंग क्या होगा? मॉडरेट, जो चीज एवरेज है, ठीक है, ठीक ठाक है, एवी, एवरेज है, मीडियम है, जो एक रीजनेबल है, ठीक ठाक है, तो वो रीजनेबल होगा, टेम्परेट होगा, ठीक है। डिफिशिएंट का मतलब तो हमने बोला जो कम है, तो इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट जो कम है, इनएडिक्वेट होगा, इनएडिक्वेट, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? इनसफिशिएंट भी होगा, जो चीज सफिशिएंट नहीं है, तो वो तो इनसफिशिएंट ही बोलेंगे ना। जो चीज कम है वो इनसफिशिएंट होगा, या फिर स्पर्स होगा, SPARS, स्पर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने वो तो लिख दिया, यहाँ पे स्कैंटी लिखा है, तो ये कि स्कैंटी भी फिर से लिख ही सकते हैं, स्कैंटी, ठीक है, स्कैंटी। यहाँ पे देखो स्पर्स, स्कैंटी, ये दोनों भी बहुत अच्छा वर्ड है, आ सकता है एग्जाम में, स्पर्स, स्कैंटी। यहाँ पे स्कैंटी आए तो बाद में स्पर्स भी आ सकता है, स्पर्स का मीनिंग क्या होगा ये भी आ सकता है ना, तो यूजर्स हैव टू बी केयरफुल, ओके। क्या मीनिंग, कौन सा क्या क्या मीनिंग है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने बोला डिफिशिएंट का जितना मीनिंग है, ये सारे डिफिशिएंट का। स्कैंटी, स्पर्स, स्कैंटी। वेरिड का क्या मीनिंग है? वेरिड का, वेरिड का मतलब जो चीजों लाइक डिफरेंट है, तो वेरिड वेराइटी का जैसे मीनिंग आता है इसका, जैसे कि हम डाइवर्स, सॉर्टेड हम बोल सकते हैं, डाइवर्स बहुत ही डिफरेंट जगहों पे, ठीक है, सॉर्टेड। चलो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट, इंडिया हैज वेरिड माने बहुत डिफरेंट, डाइवर्स, डिफरेंट डाइवर्स, वैरायटी ऑफ रीजन, डाइवर्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। वहां पे क्या है? विच हैव एक्सेस, मॉडरेट, डिफिशिएंट, कम, स्पर्स हो गई, इसका हमने बोला था स्पर्स, स्पर्स हो गए, स्पर्स रेन फॉल ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पर्स या फिर स्कैंटी, स्पर्स एंड स्कैंटी। चलो नेक्स्ट, डिफिशिएंट भी तो है, यहाँ पे नेक्स्ट वन, select the correctly spelled word to fill in the blank. Select the correctly spelled word to fill in the blank. Select the correctly spelled word to fill in the blank. Arvind wanted to bake a cake for Ria's birthday. Arvind क्या करना चाहता है? रिया के बर्थडे के लिए केक बेक करना चाहता है. So he mixed the dash, eggs and butter. उसमें उसने एक होता है ना पाउडर पाउडर, उसको ढाला है, लाइक मिक्स किया है, तो वो क्या होता है? उसको फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर, फ्लावर, एक फ्लावर। लेकिन FLAWER है, फ्लावर तो नहीं होता है, फ्लावर नहीं होता, फ्लावर। ये भी ये फूल वाले हैं, ये वाला फूल, ये वाला नहीं बोल रहे हैं, दूसरे वाला बता रहे हैं, ठीक है, ये वाला नहीं बोल रहे हैं। ये नहीं बता रहे, दूसरा मीनिंग बता रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लावर,
इसको फ्लावर, इसको बोलते हैं जो पाउडर जो जो हम यूज करते हैं। ओके, पाउडर ऑफ क्या, ब्राउन ग्रेन भी हम बोल सकते हैं, जो हम बार्ली व्हीट इन सबसे वो पाउडर बना के जो हम केक को बनाने के लिए हम यूज करते हैं ना। इसका तो मीनिंग भी नहीं बनता है, ठीक है। ये फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, ब्लॉसम, ठीक है, ब्लॉसम। बट भी बोल सकते हो, राइट। बट जो अच्छे से ब्लूम भी नहीं हुआ है फ्लावर, इसको फिर से ब्लूम भी कर सकते नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा आंसर क्या बना, फ्लावर, फ्लावर, ओके फ्लावर। चलो नेक्स्ट, सेम सेम आया है यहाँ पे, ये कर जाते हो, हमने कर लिया ना। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे कौन सा करेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, यहाँ पे कौन सा गलत स्पेलिंग यूज किया गया है। यहाँ पे देखो, द गार्डनर्स मेटिकुलस care ensured the vibrant colors of the flowers. Ensure the vibrant color of the flowers. Meticulous माने careful. Meticulous का मतलब carefully होता है, प्यार से carefully ensure किया कि guarantee, ensure का मतलब guarantee, to make sure, guarantee, guarantee, ठीक है। make sure या guarantee होगा इसका मीनिंग। the vibrant colors of the, इसी का स्पेलिंग हमें निकालना था, तो ये इसका स्पेलिंग गलत है और ये गलत सही है। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है, वाइब्रेंट का मतलब जो जिसका एकदम कलरफुल स्ट्राइकिंग कलर्स होता है ना, स्ट्राइकिंग कलर्स होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स हो गए, जैसे कि ये एक कलर है, ये दूसरा एक कलर है, ठीक है। अलग अलग तरीके से, ब्लैक भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। अलग अलग तरीके से वाइब्रेंट कलर, ब्राइट ब्राइट कलर से जो बनता है वाइब्रेंट कलर्स, ठीक है, वाइब्रेंट। नेक्स्ट, गार्डनर्स, ये तो कौन सा है, पॉजिटिव केस ऑफ, गार्डनर क्या है, नाउन है, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। गार्डनर एक इंसान है, उनका मेटिकुलस, उनका केयरफुल, केयरफुल, केयरफुली जो काम करना, उसी को बोल, ठीक है। तो केयर का हम इसका मीनिंग तो पता है, ठीक है। सीरियस अटेंशन केयर हम बोल सकते हैं, ठीक है। केयर का मतलब सीरियस अटेंशन। मेटिकुलस का मैंने मेरे यहाँ पे बोल देते, मेटिकुलस का मतलब ये केयरफुल रहना, केयरफुल रह के आप क्या करोगे, केयरफुल रह के आप क्या करोगे, छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखते हुए, ओके, क्या बोल सकते हैं, केयरफुल विथ एवरी लिटिल डिटेल्स। हाँ, पेन कहाँ से, छोटे छोटे चीजों को भी केयर करना, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, वाइब्रेंट। तो वाइब्रेंट का स्पेलिंग तो क्या होता है, वाइब्रेंट, VRANT होता है, ओके, ये ए होता है, ई नहीं होता है, ये गलत होता है। वाइब्रेंट मतलब कलरफुल, एकदम कलरफुल। नेक्स्ट वन, select the most options, select the most appropriate option to fill in the blank. Then please put the dishes in the desk after you finish eating. Sink, यहाँ पे बोल रहे कि खाना खाने के बाद आप क्या कर रहे, प्लेट्स को, डिशेस को, प्लेट जो हम यूज करते हैं उन सबको क्या बोल रहे हैं, उन सबको कहीं पे रखना होता है ना धोने के लिए, तो धोने के लिए जो हम जो यूज करते हैं वो क्या है, सिंक है कि स्ट्रिंग है कि सिंक है या सिंक है,
स्पेलिंग्स तो मतलब प्रोनाउंसिएशन तो मोरलेस सेम ही है सारे के सारे का। सिंक, सिंक इसका मतलब होता है बेसिन, जो हम यूज करते हैं ना, ऐसे जगह होता है, यहाँ पे टैप होगा, आप यूज करोगे, और यहाँ पे बर्तन सर्तन धोओगे, टेबल ये हो गए, यहाँ पे बर्तन धोओगे, वहां पे रखने के लिए जगह होगा, ऐसा कुछ, ठीक है? तो ये हमारा सिंक होगा। सिंक बेसिन जहाँ पे हम कपड़े धोते हैं, और कुछ लोग बेसिन भी बोलते हैं, वॉश बेसिन भी बोलते हैं, वॉश बेसिन भी बोलते हैं। कलर का नेक्स्ट, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग अब किसी चीज को क्या करते हो, छोटा होता है ना, तो डिक्रीज होता है, ओके, ये डिक्रीज होता है, या फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड बोला होता है। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम बोलते हैं ना वर्ड्स को, जैसे कि कैन नॉट को मैं कान कर दूं, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसको छोटा कर दो, स्ट्रिंग कर रहे हैं तो मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड। इसको डिक्रीज भी हमने बोला, ये डिक्रीज भी बोला है, और या फिर उसके क्या लग सकते हैं, डिमिनिश, डिमिनिश भी बोल सकते हैं। तो एक्सपैंडेड, एक्सपैंडेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जैसे एक्सपैंडेड वाला ये होता है, ये एक्सपैंडेड, हम इसको एक्सपैंडेड बोलते हैं, तो ये दूसरा वाला जो छोटा जो करना होता है, इसको कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो ये हो गए कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपैंडेड, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिंक, इसका भी मीनिंग होता है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन सिंक ही है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है, ये कोई मीनिंग नहीं बनता है, लेकिन SINC होता है। तो ये हम सिंक करते हैं ना, जैसे कि हम, मैं कुछ यूज कर रही हूँ, लाइक लैपटॉप यूज कर रही हूँ, या फिर मैं कोई, हाँ, लैपटॉप यूज कर रही हूँ, तो मैं उसको सिंक करती हूँ दूसरे दूसरा लैपटॉप से, या फिर अपने फोन के साथ सिंक करूंगी, तो क्या करती हूँ ये, मैं क्या कर रही हूँ, इसका मतलब होगा आप सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हो, ओके, SYNCHRONIZATION होता है सिंक्रोनाइजेशन, या फिर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, अलाइनमेंट आ गया तो हम इसको बोल सकते हैं हारमोनी भी, हारमोनी, सिंक्रोनाइजेशन, अलाइनमेंट, हारमोनी, ठीक है, उसको अलाइन कर रहे हैं फोन के साथ, ये में एडजस्ट करके यूज कर रहे हैं, ठीक है, वैसे। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल वर्ड, जो गलत है, गलत तरीके से स्पेल किया गया है, उसी को आप फिर से देखिए, इसका क्या मीनिंग होगा, इनकरेक्टली स्पेल वर्ड्स, व्हिच वन इज इनकरेक्ट, पेरिफेरल, पेरिफेरल का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, बिलेटेड सही है, और सॉरी, हमें करेक्ट, इनकरेक्ट वाला को आंसर टिक करना है ना, तो ये हमारे इनकरेक्ट वाला है, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, सही वाले को गलत करना है यहाँ पे, अजीब बात है ना, सही को गलत कर रहे हैं। रिलेटेड सारे चीजें, सारे स्पेलिंग सही है, लेकिन यहाँ पे रिलेटेड मतलब लेड होना, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल मतलब सो सराउंडिंग, एजेस, कॉर्नर्स हम बोल सकते हैं, ओके, रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग या एजेस, एरिया, पेरिफेरल में बोलो जैसे कि ये कुछ एरिया हो गए, तो उसका पेरिफेरल क्या होगा, ये इधर 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 सराउंडिंग जो ना, उसको पेरिफेरल बोलते हैं, इसको पेरिफेरल। नेक्स्ट, बिलेटेड मतलब लेट, कमिंग लेट, ओके, बिलेटेड, कमिंग लेटर देन शुड हैव बीन द केस, जो आना चाहिए था टाइम पे वो नहीं हुआ, तो वो लेट हो गई, दैट मीन्स उसका बिलेटेड, तो बिलेटेड बर्थडे भी हम बोलते हैं ना, बिलेटेड मतलब टाइम चला गया फिर भी हम आ रहे हैं, फिर भी हम विश कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे। टेंटेटिव मतलब जो सर्टेन लाइक फिक्स नहीं है, ठीक है?
नॉट सर्टेन और फिक्स्ड, जो चीज फिक्स ही नहीं है इसको टेंटेटिव डेट्स हम बोलते हैं ना, टेंटेटिव डेट्स ऑफ द एग्जाम इज, टेंटेटिव का मतलब ये होता है फिक्स नहीं है अभी तक, ठीक है। अगर मैं बोले टेंटेटिव एग्जाम ऑफ योर एपीएसएसपी या फिर एसएससी में बोलूँ तो ये 19 सितंबर करो, तो ये हो सकता है कि टेंटेटिव मतलब इसी डेट में हो सकता है या फिर दूसरे डेट में भी हो सकता है, तो ये क्लियर नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट, एक्सपेक्टेड डेट। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंजेंट कोई इंसान होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट बोलिए, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट हो गए। कोई स्ट्रिक्ट होता है तो एक प्रिसाइज, प्रिसाइज होता है, ओके। अगर प्रिसाइज है तो एग्जैक्ट भी होगा, स्ट्रिक्ट, रिजिड भी होगा, रिजिड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate synonym of the given word। तो इंस्पायर लिखा हो, इंस्पायर का हमारे सिनोनिम्स निकालने। इंस्पायर, आप किसी इंसान को इंस्पायर करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, उसको मोटिवेट करते हो, उसको होप देते हो, उसको करने के लिए आप एक इच्छा मतलब उसके मन में वो करते हो ना, तो क्या हो जाएगा, हमको एक होप एराइज करते हैं एक दूसरे के मन में, तो हम एराइज इंस्पायर की बोलते हैं कि हाँ तुम अच्छा करो, ठीक है, वो वाला। तो इंस्पायर वो एक होता है स्टिमुलेट करना, ठीक है, स्टिमुलेट करना, किसी इच्छा जगाना, ठीक है, इंस्पायर इच्छा जगाना कि कोई अच्छी चीज करने के लिए इच्छा जगाना, इंस्पायर हो गए इसका, इंस्पायर। तो स्टिमुलेट का क्या क्या हो सकता है, मैंने अभी भी बोला, मोटिवेट हो सकता है, मोटिवेट होगा। और रीच का, कहीं आप कहीं भी पहुंच गए तो वो आप अटेन करते हो, राइट, अटेन या फिर अचीव, अचीव हो गए, अराइव हो गए, अराइव हो गए, गेट टू हो गए। मोटिवेट का क्या क्या बोले, अगर मोटिवेट किसी इंसान को करते, इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, राइट, तो इसको एनकरेज करते हो, किसी इंसान को इनकरेज करते हो। आपको मैं एनकरेजमेंट कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, एक इच्छा जो मतलब मैं स्टिमुलेट कर रही हूँ आपको, राइट, स्टिमुलेट कर रही, या फिर इसको एरोस, आप बता रही हो कि आपके मन में इच्छा जागेगा कि हाँ आपको ये करना है, अच्छी चीजें करना है, पढ़ाई करना है ना, इंस्पायर। तो एस्पायर का क्या मतलब होता है, इंस्पायर एस्पायर का दोनों सिमिलर मीनिंग है। अगर एस्पायर टू बी, अगर मैं बोलूँ आई एस्पायर टू बी अगर मैं बोलूँ आई एस्पायर टू बी अ आईपीएस बोलूँ, ठीक है, तो मैं आईपीएस बनने की होप रखती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, होप फॉर, या फिर डिजायर, डिजायर, होप, डिजायर, एम, एम फॉर, डिजायर फॉर, एम फॉर, डिजायर फॉर, या फिर यर्न, ये सारे हो गए हमारे एस्पायर का मीनिंग, ठीक है, एस्पायर का। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, छोड़ो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, सॉरी, स्टिमुलेट का तो आंसर था, आंसर है डोंट। डोंट क्या होता है, आप कोई चीज डोंट करते हैं तो क्या होता है, डिसहार्ट, ठीक है, तो डिसहार्टन होता है, डिसहार्टन, या फिर इंटिमिडेट, इंटिमिडेट करते हो, किसी इंसान को इंटिमिडेट करोगे तो उसको डिस्करेज करना होता है ना, इंटिमिडेट कर रहे हो दैट मीन्स आप उसको डिस्करेज कर रहे हो, ठीक है, डिस्करेज कर रहे हो, उसको मन को लाइक थोड़ा सा फ्राइटन कर रहे हो। अगर मैं बोलूँ आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको कुछ करना था लेकिन मैं उसमें बोलूँ कि ना 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 तुमसे नहीं हो पाएगा या फिर नहीं होगा, ये मत करो, अगर ऐसे करो, वो डॉन्टिंग होता है या डोंट होता है, ठीक है, डोंट। अगर उसको मतलब इसका किसी इंसान को आप इंटिमिडेट कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, और उसको थोड़ा सा फ्राइटन कर रहे हो और डिसहार्टन फील करवा रहे हो, ठीक है, डिसहार्टन फील करवा रहे हो, तो वो हो जाएगा हमारा ये डोंट का, डोंट का, ये भी कलर ये बिल्कुल नहीं चल रहा है, ये हो गया,
आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी का वोकेबुलरी भी सीखना मोर ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब अगर ऑप्शन में आज तो ये सारे वर्ड्स आए हैं ऑप्शन में, नेक्स्ट टाइम व्हाट इफ यहाँ से कहीं पे कोई भी वर्ड्स उठा के इसको ऑप्शंस में डाल दें, तो उसे भी तो जानना पड़ेगा ना। ठीक है, तो नेक्स्ट, select the options that rectifies the spelling error in the given sentence. Rectifies यहाँ पे करेक्ट करना, जो सही बैठता है उसी को हमें चूज करना पड़ेगा। यहाँ में select the student receive an A plus for her excellent performance। ठीक है, rectifies the spelling error in the given sentence। ठीक है, चलो यहाँ पे परफॉर्मेंस एक्सीलेंट का स्पेलिंग सही है या फिर परफॉर्मेंस का है, कौन सा वाला है? परफॉर्मेंस तो नहीं होता, परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं होता है। एक्सीलेंट का स्पेलिंग तो ये करेक्टली स्पेल्ड है, ये सही है। ठीक है, परफॉर्मेंस MENCE ये भी नहीं होता है, एक्सीलेंट ये भी नहीं होता, तो ये हमारा आंसर क्या बना? एक्सीलेंट। ये यही ये सही कर रहा है, मतलब हमें सही वाला चूज करना है। ये दीज रेक्टिफाइज, हम बोल सकते हैं दीज रेक्टिफाइज दिस वर्ड, ये दीज रेक्टिफाइज दिस वर्ड, तो ये यही जो वर्ड है इसको सही कर रहा है, ये गलत है। ठीक है, इसको सही वाला ए एक्सीड डबल एन टी, ये एक्सीड डबल एन टी का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज परफेक्ट, राइट, ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी पर्सन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। सबसे सही वाला हमें यहाँ पे फिर से चूज करना है। The test of the scientific experiment raised questions about the validity of the results. The test of the scientific experiment raised questions about the validity of the result. The test of the scientific experiment, तो क्या है ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो है रेज कर रहा है क्या क्वेश्चन कि ये सही है कि गलत है, तो रिजल्ट के ऊपर, वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगा, द ट्रांसपेरेंसी और साइंटिफिक फैक्ट होगा, या फिर एम्बिग्यूटी होगा, वर्बोसिटी होगा, मेटिकुलसनेस होगा। ट्रांसपेरेंसी हम जानते हैं क्लियरिटी, मतलब आप उसको सब जानते हो, क्लियरिटी है। ठीक है, ओपननेस बोल सकते हो, ओपननेस। ठीक है, बाकी एम्बिगियस, एम्बिग्यूटी का मतलब जो जो लाइक वेगनेस हम बोल सकते हैं, VSUE एंड DWS। ओके, अच्छे से लिखते हैं, जो क्लियर नहीं है। ऑब्सक्योर भी हमने देखा था, OBSCURITY, ऑब्सक्योरिटी। ठीक है, डाउटफुलनेस, अनसर्टेनिटी। ठीक है, और वर्बोसिटी का क्या मतलब था? वर्बोसिटी का जो पहले बताया जब देखा था ये, वर्बोसिटी का क्या मतलब होता है? वर्बोसिटी का मतलब ये जो इंसान लाइक बहुत बात करता है ना, तो उसके हमने बोला था। ठीक है, उसके लिए हमने पहले किया था, इसका क्या था? वर्डनेस, वर्डनेस हो गए। लोकोशियस भी होता है, LOQUACIOUS, लोकोशियसनेस। ठीक है, या फिर इसको गैरलस भी बोल सकते हैं। गैरलस, अगर यहाँ पे नेस लिखा है तो गैरलसनेस, मतलब बहुत ज्यादा बात करना। ठीक है, नॉन स्टॉप बैक 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 करते रहना। ठीक है, बहुत बात करना। वर्बोसिटी, तो नॉन स्टॉप बात करते रहते हैं ना, चपर 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 चपर, तो उन लोग को बोलते हैं वर्बोसिटी। वर्डिनेस, कॉशियसनेस और गैरलस। मेटिकुलस पहले हमने थोड़ी देर पहले मेटिकुलस हमने देखा था। मेटिकुलस कौन सा वर्ड में आया था? मेटिकुलस, मेटिकुलस तो नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ड था? एक और वर्ड आया था, मैं भूल गया, मुझे लगा कि मेटिकुलस का कोई मीनिंग कहीं भी आया था। एनीवेज, मेटिकुलस मतलब केयरफुल। पेन कहाँ गया?
NES लिखा है तो केयरफुलनेस, डिलिजेंस हो गए, प्रिसीशन हो गए, प्रिसीशन हो गए। और एक वर्ड, एक कॉमन सा वर्ड होता है इसको याद रखिएगा, स्क्रूपुलस। ओके, स्क्रूपुलसनेस का मतलब हो गया केयरफुलनेस, मेटिकुलसनेस हो गया। ये सारे आपका सिनोनिम्स हो गए। लेकिन हमारा आंसर कौन सा है यहाँ पे? आंसर कौन सा है? जो चीज अनक्लियर है, ये जो वैलिडिटी के ऊपर जो रिजल्ट है वो अच्छा है कि नहीं है, उसका क्वेश्चन उठ रहा है ना। अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गया, एम्बिगियस है, क्लियर नहीं है अभी तक। ठीक है, एम्बिग्यूटी का मतलब वेगनेस, अनक्लियर है। सिंपल वर्ड्स में हम लिख सकते हैं अनक्लियर, अनक्लियर, या फिर डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल, डाउटफुल, ऑब्सक्योर, वेग, अनसर्टेन। ठीक है, NES मैंने लिखा क्योंकि बिकॉज उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे ब्लैंक के लिए हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला निकालना है। यहाँ पे स्टूडेंट लीडर हैज डैश पॉलिटिक्स रिसेंटली, हैज अप्रोच होगा, एंटर होगा, गैदर होगा, जम होगा। वो जम करेगा पॉलिटिक्स में, या फिर अप्रोच करेगा पॉलिटिक्स को, या फिर पॉलिटिक्स में एंटर मतलब घुसेगा, या फिर पॉलिटिक्स को गैदर करेगा, कलेक्ट करेगा। कौन सा मीनिंग सही है यहाँ पे? अप्रोच तो यहाँ पे अप्रोच तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब वो जाएगा ना पॉलिटिक्स तो घुसेगा, तो मतलब हम हिंदी में ही बोलते पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो मतलब पॉलिटिक्स गया, लाइक ही जॉइन दैट मीन्स ही एंटर्ड पॉलिटिक्स, ही एंटर पॉलिटिक्स होगा। अप्रोच का मतलब किसी को लाइक किसी के पास पाना, एडवांस होना, एडवांस, अप्रोच, एडवांस। ठीक है, कन्फ्रंट, कन्फ्रंटेड, एड्रेस्ड। किसी इंसान के आगे तरफ जाते, किसी चीज को अप्रोच करोगे तो वो एड्रेस करोगे, उसके बारे में बोलोगे, या फिर कॉन्फ्रंट करोगे, उसके सामने जाओगे, उसको बात करोगे। ठीक है, एडवांस करोगे, यू गो फॉरवर्ड। एंटर का मतलब तो हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटर का मतलब ज्वाइंट है, अभी अभी मैंने बोला ज्वाइन हो गए। ठीक है, एम्बार्क ऑन ए जर्नी भी होता है, कोई चीज स्टार्ट करते हैं, एम्बार्क। ठीक है, कमेंट्स भी हम बोल सकते हैं, कमेंट्स हो गए। ठीक है, एंगेज इन पॉलिटिक्स भी हो जाएगा। ठीक है, गैदर करना तो किसको पता नहीं है, गैदर का मतलब किसी चीज को कलेक्ट करना। ठीक है, कलेक्ट, कलेक्ट करना। अगर किसी चीज को कलेक्ट करते हो तो क्या उसको और क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेटेड। ईडी लिखा तो ईडी, कलेक्टेड, एक्यूमुलेटेड। ठीक है, असेंबल्ड, असेंबल्ड, ये सारे वर्ड्स हो गए। ठीक है, सारे इसके गैदर्ड का हो गए। नेक्स्ट, जंप का क्या होता है, लीप होता है, लीप ऑफ होते हैं, जंप। ईडी है तो इसे हम ईडी लिख रहे थे, जंप। और इसका क्या क्या बोल सकते हैं, वॉल्टेड, he vaulted from the roof, he vaulted from the bed, मतलब वो जंप किया। जंप के कोई लायन, कोई टाइगर किसी डियर के ऊपर जंप करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रैंग, स्प्रैंग। ठीक है, he sprang on the tiger sprang on the deer हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर मतलब जंप करना। ठीक है, जंप करना, जब जंप करना के भी क्या होता है, स्किप करना। स्किपिंग रोप जानते हो ना, इसमें आप खड़ा करके जंप करके खेलते हो, तो स्किपिंग हो, स्किप। ठीक है, स्प्रैंग का मतलब कोई देर ऐसा है तो इसके ऊपर जंप करके उसको खा दे ना, तो उसी तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है,
मतलब देखो सिनोनिम्स वाले आप जितना भी देखोगे सिनोनिम्स वाले होगा सिमिलर होगा, आप उसको जितना भी क्लोज मीनिंग निकाल सकते हो निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, इसका कम नहीं होने वाला है, सिनोनिम्स बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता सिनोनिम्स का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट मीनिंग आप निकालो, एग्जैक्ट मीनिंग आप निकालो। यहाँ पे हमने बोला एंटर का मतलब एम्बार्क ऑन हो सकता है, या फिर एंटर का मतलब किसी रूम में घुसना भी होगा, तो इस केस में पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, या फिर कॉमन किसी चीज को स्टार्ट करना एंटर करना भी मीनिंग होगा, तो बहुत सारे मीनिंग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाँ आंसर तो हमने बता दिया, एंटर हो गए, ये हो गया। चलो नेक्स्ट, इसका क्या आंसर था, एम्बिग्यूटी, राइट। इसका क्या था, एक्सीलेंट। इसका क्या था, स्टिमुलेट। इसका क्या था, पेरिफेरल। ओके, पेरिफेरल का स्पेलिंग कैसा है, पेरिफेरल पी, इसका स्पेलिंग कैसा है, हमने तो सराउंडिंग पेरिफेरल का मीनिंग तो बता दिया लेकिन स्पेलिंग नहीं बताया इसका, पेरिफेरल PERI होता है कि PERI PHERAL, तो लिखा ही नहीं इसका आंसर, अभी नहीं दिखता तो मैं भूल ही जाती कि इसका स्पेलिंग लिखता है PERI PHERAL, पेरिफेरल। ठीक है, पेरिफेरल PERI PHERAL होगा हमारे आंसर, स्पेलिंग। इसका मतलब ये होता है, दैट मींस दिस इज आवर आंसर, पेरिफेरल। इसका कौन सा था हमारा आंसर, सिंह था, सॉरी सिंह था आंसर, पता नहीं आज क्यों मार्क नहीं कर रहे हो, सिंह। ठीक है, सिंह हो गया। अच्छा हुआ भी मैंने फिर से दोबारा चेक कर लिया, वाइब्रेंट PRANT होता है, ENT नहीं होता है। तो इसका हमने क्या किया, तो ये तो हमने कर लिया था, इसलिए इसका क्या था, फ्लावर। इसका क्या था, डिफिशिएंट था। मतलब कुछ कुछ में मैंने आंसर तो एक्सप्लेन कर लिए थे लेकिन आंसर को टिक करना भूल गए, इसलिए दोबारा देख रहे थे। तो ये हो गया हमारा आंसर, सी इसका डेंजरस हो गया। इसका क्या था, स्टडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी, यहाँ पे एरर कहा है हमें निकालना है, यहाँ पे एरर। The following sentence has been divided into four parts. ठीक है, in two parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error. यहाँ पे कोई भी error अगर नहीं मिल रहा है आपको तो उसको no error कर दो। वही है जैसे हमने जितना तक अभी तक किया है उतना सेम ही है ये भी। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। अब बताओ, I'm cleaning the sofa when she called. अगर जब उसने कॉल किया तब मैं क्लीन कर रही थी, ठीक है होना चाहिए ना, ठीक आंसर होना चाहिए था। जब उसने कॉल किया तब मैं क्या कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी। तो यहाँ पे आई एम क्लीनिंग द, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कौन सा, आई, ये वाला, आई वॉस, मैं कर रही थी, एम नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, वास होगा, पास का होगा, शी कॉल्ड। ठीक है, जब वो कॉल किया था उसने तब मैं क्या कर रही थी, तब मैं साफ सफाई कर रही थी, आई वॉज क्लीनिंग व्हेन शी कॉल, मैं कर रही थी तब उसने कॉल किया था, तो उसी का मीनिंग है। ठीक है, तो ये गलत हो गए, ये गलत हो गए, ये गलत हो गए, ये हमारा आंसर बना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments. आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ में पहले वाले जैसे कोई सेगमेंट दिया है, यहाँ पे एरर कौन सा है हमें निकालना है। ठीक है, द सोसाइटी ऑफ द आवर प्लेस इज गुड, यहाँ पे एरर बताओ। The society of our place is good. द क्यों लगाओगे यहाँ पे, आर्टिकल क्यों चाहिए हमें, The society of our place is good ना, हमारे सोसाइटी का जो जगह है वो अच्छा है, द नहीं चाहिए हमें, ऑफ द।
यही तो हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो ये सारे स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स आइडेंटिफाई द सेगमेंट दे कंटेन एरर जो है उसको निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। द नहीं लगेगा, बस हटाना है उसको। नेक्स्ट, select the most appropriate expressions that can substitute the underlined word in the given sentence. तो अंडरलाइन वर्ड कंtemplating है, अंडरलाइन वर्ड का ऑप्शन हमें निकालना है यहाँ पे। सोनाली इज कंtemplating whether to accept the offer from Sanvi or not. She is still not in a position to be able to arrive at a decision. तो यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है, सोनाली जो है अभी तक जो सानवी ने ऑफर दिया था उसके उसको मतलब उसके ऊपर सोच रही है। वो सी इज नॉट इन अ पोजिशन टू बी एबल टू अराइव एट ए डिसीजन, मतलब अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रही है क्या करने वाली है, क्या करेगी वो, अभी तक सोच रही है। कंटेम्पलेटिंग का मतलब थिंकिंग, ठीक है। पॉन्डरिंग मैंने क्या बोला, थिंकिंग, पॉन्डरिंग। तो यहाँ पे बताओ, रेजिंग द आईब्रोज या फिर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, गेटिंग हर एक्ट टुगेदर, अचीविंग द कप। तो ठीक है, यहाँ पे हमें एक इडियम इसका फ्रेज से हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। रेजिंग द ब्रोज का होता है एक डाउट, कोई डिसअप्रूवल दिखाना, ठीक है। हम घर में जब रहते हैं ना, तो मम्मी जब छोटे होते हैं तो मम्मी क्या करते हैं, मैं बोलती हूँ तुम मुझे घर जाना है, करके ऐसे देखते हैं। तो रेजिंग द ब्रोज को डिसअप्रूवल करते हैं, तो डिसअप्रूवल दिखाते हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, सरप्राइज भी दिखाते हैं। क्या सरप्राइज का एक्सप्रेस लिख दिया मैं, ओ भगवान। डिसअप्रूवल, ठीक है। और हमने क्या बोला था, मैंने बोला सरप्राइज भी दिखाता है, सरप्राइज भी दिखाता है। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड क्या मतलब होता है, स्विंगिंग बिटवीन टू मूड्स या वेवरिंग बिटवीन टू मूड्स हम बोल सकते हैं, मतलब दो मूड्स के, एक अच्छा एक बुरा, ठीक है। टू मूड, एक्शन, या फिर कोई डिसीजन के बीच में हम लोग फंस जाते हैं ना, किसी डिसीजन के बीच में हम फंस जाते हैं कि हमें ये करना है या फिर वो करना है, ठीक है। when you are stuck between, waving मतलब when you are stuck between, okay? when you are stuck between two moods, मूड मतलब ये करना है कि वो करना है, गुस्सा, हैप्पी, तो एक्शन या फिर डिसीजन के बीच में आप फंस जाते हो, उसको बोलते हैं weaving, सॉरी blowing hot and cold। तो गैदरिंग हर एक मतलब टू ऑर्गेनाइज वन सेल्फ और या पुट वन सेल्फ टुगेदर, अच्छे से बिहेव करना, ओके। प्रिपेयरिंग प्रॉपरली हम बोल सकते हैं। चीविंग द कट का क्या मतलब है, चीविंग द कट, मेडिटेटिंग, मेडिटेटिंग हम बोल सकते हैं या फिर थिंकिंग का बोल सकते हो। पॉन्डरिंग, और ही मैंने लिख दिया पॉन्डरिंग का क्या है, पॉन्डरिंग मतलब थिंकिंग। इसको और क्या बोल सकते हैं, टर्निंग समथिंग ओवर द माइंड, ओके। पेन कहाँ चला जाता है, मतलब मन में सोचना, चीविंग द कट, ओके। चीविंग द कट, चीविंग द कट मतलब सोच के उसको दिमाग में चलाना, ठीक है, इसका होगा। तो यहाँ में कौन सा सबसे आंसर सही है, मैंने पॉन्डरिंग का वाला लिख दिया था, तो ये हमारा आंसर बनेगा
ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, चलो। ठीक। 1617। अब बताओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन अ सेंटेंस। अंडरलाइन सेगमेंट में जो सबसे ज्यादा सही वाला जो है ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे चार ना, तो उसमें से यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। She was deeply affected by the news to the point of tearing, to the point of tears. वो इतना, उसको जो न्यूज था इतना असर पड़ा उसके ऊपर कि वो रोने वाली थी। ठीक है, अफेक्टेड फ्रॉम होगा, अफेक्टेड फ्रॉम होगा, अफेक्टेड ऑफ होगा, अफेक्टेड बाय होगा। ठीक है, अफेक्टेड बाय, तो यहाँ पे इफेक्टेड नहीं होगा, ये स्पेलिंग गलत है ना, तो अफेक्टेड होगा, किसी आपके ऊपर असर पड़ रहा है। ठीक है, शी वॉज इफेक्टेड, शी वॉज इफेक्टेड बाय, अफेक्टेड होगा, इफेक्टेड होगा, कौन सा सही है? तो क्या दिक्कत कर रही हूँ यहाँ पे बता। तो अफेक्टेड बाय जैसे लिखा, इफेक्टेड नहीं होगा, अफेक्टेड, आपको असर पड़ रहा है किसी चीज के ऊपर, तो वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अफेक्ट फ्रॉम नहीं होगा, किसी चीज से होगा। बाय दिस न्यूज शी वॉज अफेक्टेड बाय दिस न्यूज, तो तभी तो वो रोने वाली थी। फ्रॉम नहीं लगेगा, ऑफ भी नहीं लगेगा, बाय बनेगा, किसी चीज से हो रहा है। ठीक है, चीज से। अफेक्टेड जो है बाय, मतलब किसी इस चीज का इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब उसके असर पड़ रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इमोशनल हो रही है और रोने वाली थी। ठीक है, इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे शी वॉज इन्फ्लुएंस बाय द न्यूज या फिर अफेक्टेड बाय द न्यूज टू द पॉइंट ऑफ टीयरिंग, तो वो रोने वाली थी उसके वजह से। फिक्स प्रिपोजिशन लेता है, अफेक्ट लेता है बाय, अरे पैसे पर, सॉरी। You overheard someone say he always he's always on cloud nine. What does the idiom means? Cloud nine का मीनिंग क्या है? Cloud nine का, जो कोई इंसान क्लाउड नाइन होता है तो वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खुश होता है, राइट? क्लाउड नाइन का एक्सट्रीमली हैप्पी होता है क्लाउड नाइन। यहाँ पे मीनिंग बताइए, यहाँ पे ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, बोरिंग है एकदम। कलर्स जो ना एकदम कॉन्ट्रास्ट नहीं हो पा रहा है इस चीज में। ऑफन एब्सेंट, मतलब वो क्या, ऑप्शन एब्सेंट मतलब डिस्ट्रैक्टेड होता है, डिस्ट्रैक्टेड। कभी कभी स्पेसिंग आउट हम बोलते हैं ना, क्लास में आप लोग बच्चे बैठते हो, लेक्चर सुनते रहते हो, उसमें कभी कभी होता है कि आप स्पेस आउट करते हो, दैट मीन्स आप किसी और चीज के बारे में सोचने लग जाते हो, आपका मन कहीं और चला जाता है। ठीक है, कहीं और चला जाता है आपका मन। एक्सट्रीमली हैप्पी का मतलब कि आप ओवर जॉयड होता है, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, तो उस चीज को बोलते हैं एक्सट्रीमली हैप्पी। फ्रिक्वेंटली डे ड्रीमिंग, ऑलवेज बिजी। तो यहाँ पे क्लाउड नाइन क्या होता है, सी इज, क्लाउड नाइन का मीनिंग होगा एक्सट्रीमली हैप्पी, आप बहुत ही ज्यादा ओवरजॉयड हो जाते हो, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, उसी को बोलते हैं क्लाउड नाइन। वो क्लाउड नाइन में है, मतलब बहुत ज्यादा खुश है, वो एक्साइटमेंट से भरा है। ठीक है, ओवरजॉयड मैंने लिखा। तो एक्सटेटिक भी हम बोल सकते हैं, एक अच्छा सा वर्ड है जो हम हमेशा यूज करते हैं, ई सी एस टी ए टी आई सी। ठीक है, एक्सटेटिक, ये हम यूज करते हैं। थ्रिल भी हम यूज कर सकते हैं, थ्रिल, थ्रिल। ठीक है, इलेटेड, इलेटेड। ठीक है, ये दोनों इलेटेड, ये दोनों इम्पोर्टेंट, लाइक इम्पोर्टेंट मैंने आप बहुत यूज कर सकते हो। बाकी में एस्थेटिक का ये मीनिंग आ सकता है, इलेटेड का मीनिंग भी आ सकता है, ओवरजॉयड एंड थ्रिल तो हम जानते ही हैं ये दो। ठीक है, डे ड्रीमिंग जो इमेजिनेशन करते रहता है, डे ड्रीमिंग करता है, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन दुनिया में लॉस होते रहता है, वो खो ही जाता है, जैसे कि आप लोग खो जाते हो। ठीक है, लॉस इन थॉट्स, थॉट्स। ऑलवेज बिजी जो हमेशा एंगेज होता है, हमेशा एंगेज होता है, किसी न किसी काम में ऑक्युपाइड रहता है, ऑक्युपाइड रहता है, किसी न किसी काम में ऑक्युपाइड रहता है। तो जो बहुत हमेशा बिजी रहते हैं उन लोगों को इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं, INDUS आर ओ
यूएस इंडस्ट्रियस, ठीक है, जो बहुत काम करता है, बहुत मेहनती है, उस इंसान को भी हम इंडस्ट्रियस बोलते हैं, ठीक है। वर्कaholic भी बोलते हैं, तो इंसान बहुत ज्यादा काम करता है ना, उसको वर्कaholic में बोलते हैं, वर्कaholic, ठीक है। तो ये जितना हम आज किया है, एस्थेटिक, ही इज ऑन क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन, पेन कहाँ चला जाता है, क्लाउड नाइन, यहाँ पे क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन का क्या मतलब है, एक्सट्रीमली हैप्पी होना, ठीक है, एस्थेटिक होना, इलेटेड होना, तो ये हो गए हमारे आंसर। नेक्स्ट वाले क्या था हमारे, अफेक्टेड बाय, इन्फ्लुएंस होना, असर पड़ना उसके ऊपर, आपके ऊपर, ठीक है, इफेक्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम च्यूइंग द कट, च्यूइंग द कट मतलब माइंड में प्रोसेस करना, पॉन्डरिंग करना, सोचना, ठीक है, टर्निंग समथिंग ओवर द माइंड, ये भी सही है, मन में उसको सोच सोच के कंक्लूजन निकालना, सोचना, ठीक है, पॉन्डरिंग, ये होगा। चलो इतना ही आज के सेशन में अपना करते हैं, एंड देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज जितना हम कर रहे हैं प्लीज उसको फिर से रिव्यू कीजिए, देखिए, और कहीं पे आपका वोकेबुलरी इंप्रूव हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आंसर निकालना, आप कोई भी वेबसाइट में जाइए, ठीक है, और सर्च करोगे इसका पीवाईक्यू, तो आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है, और दूसरे वोकेबुलरी को भी आप नहीं दिया जाता है। तो आप ये सारे सेशन देख के आप वोकेबुलरी अपना इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, क्या बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ग्रामर का जितना पॉइंट्स है, ठीक है, इसको भी इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना तो मस्ट होता है, ठीक है। So with this we shall end today's session and we'll see you in the next session, right? This is the 16th and we'll see you on the 17th session. Okay. Please take care until then. We'll see you in the next one.